Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second lecture of Surveying 2 theoretical course. As we were discussing about the curves, so in previous lecture we have discussed the basic introductory points about the surveying. Also, we have introduced the course outlines, and then we have started our first chapter, which was about the curves. And in previous class we have discussed about the basic concepts, the needs, and the different types and the nomenclature of the curves. Okay, and also the different parameters which will be involved in the designing of the different types of curves for roads, railways, canals, pipelines, etc. Okay. Today we will discuss some numerical problems in which we will deal with the basic points or the basic calculations which are required before the setting out or ranging of a circular curve. Okay, so जो basic calculations है या computations है, that will be discussed, and then we will have the most important topic of the curves, which is about the ranging of simple circular curves. Okay. uh, First, before going into the detailed discussion of the class outline, आप लोग जो just concept clear कर ले कि ranging क्या होता है. Okay, ranging is also called the setting out of the curve. That is a kind of practical procedure that how you will practically define the path, yeah, the center line, yeah, the line of communication of a specific project in a circular manner. Okay, ये field procedure है या practical procedure है. ठीक है. For example, as we have also discussed in the previous class, suppose you have started from this point, which is your starting point. So that will be the change of that point will be 0 plus 0 0. Okay, for example, just imagine or consider that you people are in the ground. आप फील्ड में है, आप ग्राउंड पे है. ठीक है, प्रैक्टिकली आप अपना माइंड जो है इस तरह कंसिडर कर लें कि इस पॉइंट से हमने स्टार्ट दिया हुआ है, एंड फॉर एग्जांपल वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ रोड. ओके, सपोज वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस अलाइनमेंट में हम जा रहे हैं, which is called the line of communication. Now, due to some abstraction here, we will have to change our direction from this point. So this point is called the point of intersection. Okay, so we will need that what is the change of this point from the starting point, and also we will need that at how much angle we have deflected from its previous direction into forward direction. Now we will need to design a specific curve in between these two line of communication. So based on experience, yeah, based on the space availability, suppose we have decided that we will construct a curve of radius r, or suppose we will construct a curve of this much degree. Okay, now फील्ड में हमारे पास ये दो अलाइनमेंट्स होंगे, एक ये अलाइनमेंट है और एक ये अलाइनमेंट है. ये दो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना. स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास, बीच में सपोज इफ वी हैव फिक्स्ड डिफरेंट पिग्स या डिफरेंट स्टेक्स आप लगाएं. अक्सर क्या करते हैं, वायर्स लगाएं या क्या करते हैं उस अलाइनमेंट में जो है चूना डाल दें. तो फील्ड में ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, अर्थ सरफेस पे आपके पास ये दो लाइंस होंगे. नाउ in between these two line of communication, how we will construct a curve. इनके दरमियान वो कर्वेचर हम किस तरह बनाएंगे. So we will have to fix different points कि यहाँ पे जो कर्व आएगा ना, उसके लिए हमने क्या करना है, ग्राउंड पे फील्ड में हमने डिफरेंट पिग्स लगाने हैं, डिफरेंट स्टैक्स लगाने हैं, डिफरेंट पॉइंट्स लगाने हैं, and these points will define
the alignment या the path of the curve. जब आप ग्राउंड में डिफरेंट पिग्स लगाए स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, 10 मीटर डिस्टेंस पे, 20 मीटर डिस्टेंस पे, 30 मीटर डिस्टेंस पे, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कर्व. तो अगर ग्राउंड पे आप इस तरह सर्कुलर पाम में डिफरेंट पिग्स लगाएं तो वो क्या करेगा, इट विल शो, इट विल रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ कर्व. वो कर्व का सेंटर पाथ होगा, तो उसके ऊपर फिर हम कंस्ट्रक्शन जब कर लेंगे, सो वी विल गेट व्हाट, we will get our curve. Now the question is how you people will fix these pegs at a fixed interval so that कि ये आपको कर्व का alignment दे दे. This procedure, this fixing of the points along the alignment of the curve is called ranging. इसको sitting out कहते हैं. ठीक है. अगेन देखिए, ग्राउंड पे आपके पास एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है. अब इनके दरमियान हम कर्व बनाएंगे ना, तो कर्व कहां कहां से पास होगा. फॉर दैट पर्पस वी विल हैव टू फिक्स डिफरेंट पेग्स और डिफरेंट स्टेक्स अलोंग द कर्व जहां से आपका कर्व पास हो रहा है ना. सो ये पॉइंट्स हम कैसे लगाएंगे. प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आपने पेग्स लगाने होंगे ना, तो ये पेग आप कैसा लगाएंगे, फर्स्ट वन जो है, सेकंड कैसा लगाएंगे, थर्ड, इसका पोजीशन किस तरह डिटरमाइन करेंगे. as we have discussed in the previous class in the definition of the surveying, that surveying is just to determine the position of different point on the surface of earth. So for the designing of curve, we will have to find out the position of different points which will lie on the curvature. ठीक है, आपने इस तरह पॉइंट्स डिटरमाइन करने हैं जो कर्व की ऊपर आ रहे हैं. और आप जब अर्थ सरफेस पे सपोज एक पॉइंट फाइंड कर ले कि ये पॉइंट जो है ये कर्व के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे एक पेग लगाए. ये पॉइंट कर्व के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे एक पेग लगाए. यहां से कर्व पास होगा तो यहाँ पे एक पेग लगाए, यहाँ पे एक पेग लगाए. तो जब आप डिफरेंट पेग्स लगाएंगे ना, तो आपके पास वो कर्व बन जाएगा. फिर ये कर्व का सेंटर लाइन होगा. यहाँ पे आप अगर एक्सकेवेशन करते हैं, फिलिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, कोई एस्फॉल्टिक मटेरियल आप डाल दे, उसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर ले इस अलाइनमेंट में, तो आपके पास वो कर्व आ जाएगा. यू विल गेट द कर्व फ्रॉम दिस टेंजेंट, देन यू विल हैव द कर्व, देन यू विल हैव द नेक्स्ट टेंजेंट. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी विल फिक्स these pegs या these points exactly on the curve. So that is called the ranging, or that is called the setting out. So we will discuss the different methods that how we can find out the position for different points which will lies on the curve. Okay, but again, going into that ranging details, first we will have some basic calculations or basic computations about the circular curve. So see, as we have discussed that for ranging or setting out, we have two methods. Okay, that how we can find out the position of different points which will lies on the curve. So आप वो position find करके वहां पे pegs लगाए ग्राउंड पे, फील्ड में, that is called the ranging. तो ranging जो है उसको हम दो मेथड से कर सकते हैं. One is called the linear method. So again, from the name it is clear that in linear method we are only using chain and tape. We are finding out the position of their points based on the linear measurements. Okay, just आपने distances measure करने होंगे practically. So you will just need a tape or chain. That's why it is called the linear method. Second जो method है, that is called the angular method. That actually we are defining, determining the position of different points which will lies on the curve based on the angular measurements. So that's why it is called the angular method. ठीक है, और angular measurement के लिए we can use the theodolite, we can use the compass. ठीक है, तो दो मेथड है ranging के लिए या setting के लिए. Today we will discuss the linear method, and inshallah next class then we will discuss the angular method. Okay, so that is just a concept about the ranging, that what is mean by ranging, what is mean by sitting out. So again, ranging or sitting is the practically fixing the different points on the surface of earth which will define the alignment of the curve.
which will define the path for the curve. इसको ranging कहते हैं, ठीक है। तो दो मेथड से कर सकते हैं। Again, before starting into that, before starting into sitting out or ranging of the curve, first you will have to define the exact position of the tangent. ठीक है, as we have discussed कि ग्राउंड पे आपके पास एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। ग्राउंड पे तो आपके पास जस्ट दो लाइंस है ना, इनको आपने डिफाइन किए होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स आपने लगाए हुए हैं, या एक वायर आपने लगाया हुआ है, एंड देयर विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, द डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. Now our requirement is to design a curve, yeah, to construct a curve in between these two line of communication. Okay, so the first step is you have to define the starting and ending of the curve, कि curve कहां से start होगा और कहां पे खत्म होगा, and these 2 points, yeah, the curve at these 2 points is tangent to the line of communication. So these 2 points are called tangent points. So before starting the ranging or setting out of the curve, first you will have to define the tangent points, कि curve कहां से start होगा और कहां पे खत्म होगा, mean the points in between which the curve will lies. ठीक है, आपने वो दो पॉइंट्स डिफाइन करने जिनके दरमियान curve आएगा. So इन पॉइंट्स को किस तरह डिफाइन करेंगे? The first question is this one. ठीक है, so see, first you will have to, again, you will have the direction of the first line of communication and the second line of communication, and these two lines are also called the straights. These two lines are also called the tangents. So ground पे actually आपके पास दो lines हैं. That is the starting point. This is the suppose जहां से आपका project start हुआ है. B जो है that is the deflection point, या the point of intersection, या the intersection point, जहां से आपने एक अलाइनमेंट को चेंज करना है, और BC जो है ये अब दूसरा अलाइनमेंट है. Now we have to make this directional change gradual. For that purposes we will have to design a curve. Now वो curve कहां से start होगा? ठीक है, so first fix the direction of the two line of communication and just specify कि ये दो डायरेक्शन कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे, so that will be the point of intersection. Now we see, as we have discussed in the previous class, that before going into design or set out any type of curve, first you will have 3 information. वो कौन कौन से है? फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए जी? एनीवन क्विकली बताएं सर. रेडियस. ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर. इंटरसेक्शन एंगल. इंटरसेक्शन एंगल, जनरली वी कैन से दैट डिफ्लेक्शन एंगल, या अगर इंटरसेक्शन है तो इससे हम डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं. और फर्स्ट क्या चाहिए आपको? चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट. सी you have started from this point, so इसका चेनेज क्या है? 0 + 0 0 है, ठीक है. और जिस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो सपोज ये अगर 1000 मीटर आ रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से 1000 मीटर पे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो द चेनेज ऑफ दिस पॉइंट इज 1000 मीटर है, तो इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं इन द नंबर ऑफ राउंड चेन एंड फ्रैक्शन. सो रिमेंबर, स्टैंडर्ड चेन का जो लेंथ होता है वो 100 फीट है, या वी आर टेकिंग इट 30 meter. So if this point lies at 100 meter distance from the starting point, so its chainage will be 33 plus 10. Okay, 33 full chain. इन अगर 33 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर ले, so you will get 990. So 33 full chain plus 10 meter. That is the chainage of this point. Now remember, chainage of the point will be practically observed. ये आपके पास फील्ड से आ जाएगा कि
कितने डिस्टेंस पे स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन चेंज हो रहा है। नाउ डिफ्लेक्शन एंगल जो है या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है, दिस वैल्यू मस्ट बी अगेन मेजर्ड, ये आपने ऑब्जर्व करना होगा। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें, मोस्टली टेडेलॉइड को, और इस डायरेक्शन को साइट करके मीन बी पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें एंड डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड्स ए and rotate it towards C. So you will get this angle, which is the angle of intersection. Okay? Then you can find out the angle of deflection, that 180 minus angle of intersection. So remember, change of the intersection point and the intersection angle or deflection angle, these two will be measured. ओके इसको आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने होंगे, इसको आपने प्रैक्टिकली मेजर करने होंगे। ठीक है, रेडियस जो है ये आपने सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन स्पेस अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन द शार्पनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। उसकी बेस पे जो है रेडियस आप सेलेक्ट करेंगे और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड चेंज जो है ये आप ऑब्जर्व करेंगे, प्रैक्टिकली मेजर करेंगे। ठीक है, so first fix the direction of the two straights, then observe the change of the point of intersection कि इसका change क्या है, fix the theodolite on intersection point and practically measure the angle of intersection. So once you get the angle of intersection, then you can calculate the deflection angle. Clear? Now you have the radius, you have the deflection angle, then you can calculate the tangent length, which is r tangent pi by 2. Okay, it means that tangent length is the distance from the point of intersection to the starting of the curve, or the distance from the point of intersection to the end of the curve. So in the third step you will calculate the tangent length. ठीक है, then measure this distance, मीन आपके पास अगर कुछ वैल्यू आ जाए 200 मीटर आ जाए फॉर एग्जांपल, तो बी पॉइंट से इन द फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए और यहाँ पे एक पॉइंट लगाए, यहाँ पे एक पेग लगाए, सो दैट विल बी T1 पॉइंट। ओके, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नेक्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएं और यहाँ पे एक पेग लगाए, that will be the second tangent, या that will be the end of the curve. So you have defined the position of the starting of the curve and the end of the curve. Again देखिए, ग्राउंड पे आपके पास जस्ट दो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, तो रेडियस सेलेक्ट कर ले, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जर्व कर ले, टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट कर ले, और इंटरसेक्शन पॉइंट से फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में वो टेंजेंट लेंथ मेजर कर ले टेप के जरिए, और यहाँ पे एक पेग लगाए, वो T1 पॉइंट होगा। और दूसरी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो टेंजेंट लेंथ मेजर करके एक पेग लगाए, ये आपके पास T2 पॉइंट होगा। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल दी टेंजेंट लेंथ जो है हमारे पास 200 मीटर है, तो ये भी 200 मीटर होगा, ये भी 200 मीटर होगा। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द चेंज ऑफ दीज टू पॉइंट, कि इन पॉइंट्स का चेंज क्या है। तो सी द चेंज ऑफ पॉइंट बी वाज 1000 मीटर फॉर एग्जांपल, सो T1 का चेंज क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो इसको नंबर ऑफ फुल चेन और फ्रैक्शन में लिखें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फिक्स द पोजीशन ऑफ द टेंजेंट पॉइंट्स। सो टेंजेंट पॉइंट्स का पोजीशन आप किस तरह फिक्स करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट से आपने दोनों स्ट्रेट्स पे टेंजेंट लेंथ मेजर करना होगा, वहां पे पॉइंट्स लगाएं, तो आपके पास T1 और T2 का पोजीशन आ जाएगा। नाउ इनका चेंज डिफाइन करना है कि T1 का चेंज क्या है। सो देखें, चेंज ऑफ बी माइनस द टेंजेंट लेंथ, तो T1 का चेंज आ जाएगा। अब इसको नंबर ऑफ फुल चेन और फ्रैक्शन में लिखे, सो मीन अगर ये मीटर में है
तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ना कि इससे कुछ फ्रैक्शन इस तरह सेपरेट कर ले विच विल डिविजिबल बाय 30। सो कितना आ सकता है ये 800 को हम किस तरह लिख सकते हैं 700 क्या आ जाएगा कि डिविजिबल बाय 30 हो जाए, इससे इस तरह हम फ्रैक्शन रिमूव कर ले कि डिविजिबल बाय 30 हो। सो 780 plus 20 780 प्लस 20, सो 780 जो है ये हमारे पास 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 फुल चेन प्लस 20 मीटर, दैट इज द चेनेज ऑफ T1। ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फिक्स द पोजीशन ऑफ T1 एंड T2। सेकंड स्टेप क्या है, डिटरमाइन द चेनेज ऑफ T1 एंड T2। सो T1 का चेनेज क्या होगा, चेनेज ऑफ B माइनस द टेंजेंट लेंथ, ठीक है, और उसको फिर इस फॉर्म में लिखें। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि T2 का चेनेज क्या होगा जी? एनीवन? वो सेम होगा ये कि बराबर नहीं होगा? नहीं, नहीं सर, इसके साथ 8 कर लो सर, 8 कर लो। पीआई के साथ सर 24 प्लस 28 कर लो। देखिए चेनेज जो होता है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका चेनेज 0 है। बी का चेनेज क्या था, वो 1000 था। तो T1 का चेनेज क्या आ जाएगा, B माइनस टेंजेंट लेंथ। अब T2 के लिए हमारा पाथ क्या होगा, वी विल गो अलोंग द करो पे हम जाएंगे ना, उस साइड पे तो हम नहीं आएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ से तो हम नहीं आएंगे, ठीक है। वी विल गो अलोंग द करो। तो अब T2 का चेनेज क्या होगा, आप कोई बता सकते हैं? 1200 सर T1 हाँ, T1 प्लस कर्व लेंथ। एग्जैक्टली, चेनेज ऑफ T1 प्लस द लेंथ ऑफ करो, बिकॉज नाउ T2 के लिए हम कहां पे जाएंगे, T1 प्लस द लेंथ ऑफ करो, ठीक है। अगर सपोज लेंथ ऑफ करो आपके पास फॉर एग्जांपल 300 आ रहा है, तो T1 का जो चेनेज होगा वो 1100 हो जाएगा। अब इसको भी अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें राउंड फॉर्म में। सो वी कैन कन्वर्ट इट 36 प्लस 20, ये इसका चेनेज होगा। क्लियर हो गया? सर लेकिन हम जब सर्वे कर रहे थे तो हम तो ए से गए थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फिर सी तक गए थे, तो हमारा एक्चुअल पाथ तो ही है ना, तो हम नहीं, एक्चुअल पाथ आपका क्या होगा, जिस पे आप जो है फिर जो पाथ ऑफ कम्युनिकेशन है ना, सपोज गाड़ी कहाँ पे जाएंगी, वो ए से T1 और फिर T2 की तरफ जाएंगे, फिर सी की तरफ जाएंगे, ठीक है। देन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पाथ। ये तो जस्ट हम कंस्ट्रक्शन के लिए कंसिडर कर रहे, फिर यहाँ पे तो हम नहीं जाएंगे ना। अब सपोज अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर भी आप आगे तो नहीं जा सकते इस पॉइंट से, ठीक है। चेनेज उस पाथ को कहते हैं जिस पाथ को आपने कवर करना होता है, जिस पाथ पे आपने जाना होता है, ठीक है। सही है सर। अच्छा, so that is the second step. Now the third step जो है that is the most important, that you have to define the interval of this curve, ठीक है। पिग इंटरवल डिफाइन करने होते हैं, पिग इंटरवल। देखें कि जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि इन सेटिंग आउट और इन रेंजिंग ऑफ द करो, we will have to fix the different points, we will have to fix the pegs on the ground, तो वो हम स्पेसिफिक इंटरवल पे लगाएंगे। तो अब देखिए, it depends on the sharpness of the करो और the flatness of the करो। यस, अगर करो स्मॉल है तो दो पॉइंट्स के दरमियान इंटरवल स्मॉल होना चाहिए। अगर करो लार्ज है तो करो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। So mostly we are taking 10 meter interval or 20 meter interval or 30 meter interval। अगर करो स्मॉल है और शार्प है तो जो है आप 10 मीटर के इंटरवल ले लें, और अगर करो लार्ज साइज का है तो फिर जो है आप 30 मीटर के इंटरवल भी ले सकते हैं। और 30 मीटर जो है ये ज्यादा रिकमेंडेड है, बिकॉज मोस्टली 30 मीटर जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ वन चेन लेंथ, बिकॉज ये 100 फीट के बराबर होता है, और वन चेन जो होता है उसका लेंथ हमारे पास 100 फीट है, ठीक है। सो मोस्टली जो पिग इंटरवल लेते हैं वो 30 मीटर लेते हैं, लेकिन अगर
अगेन आप ये पॉइंट माइंड में रखें कि द लेंथ ऑफ पिग इंटरवल जो है इट विल बी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द करो, ठीक है। फॉर स्मॉल करो यू कैन टेक द पिग इंटरवल 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर, ठीक है। बट स्टैंडर्ड जो है वो 30 मीटर है अगर लार्ज साइज का करो, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन ये है कि उसको जो आप फिक्स करेंगे इंटरवल्स को, तो उसके लिए आपने फाइंड करें कि कितने इंटरवल्स आएंगे, यहाँ पे कितने पिग्स आपने लगाने होंगे, कितने पॉइंट्स आपने लगाने होंगे, ठीक है। सो सी स्टार्टिंग पॉइंट जो है करो का, उसका चेंज क्या है, 2420 है। नाउ रिमेंबर इसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट आप लगाएंगे डेट मस्ट बी एक राउंड चेन नंबर, वो राउंड चेन नंबर पे होनी चाहिए। तो फर्स्ट पिक का चेंज क्या होगा जी? 2450 जी मीन फर्स्ट पिक जो है इट मस्ट बी एक राउंड नंबर ऑफ चेनेज। तो T1 का चेनेज क्या है, 2420 है। तो फर्स्ट पॉइंट का चेनेज क्या होना चाहिए, 2450 2450 कहां से आएगा यार, 2520 2520 भी राउंड नंबर है। आप लोगों का चेनेज जानते हैं कि नहीं? देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप 30 मीटर कवर कर लेना तो आपके पास 1 + 0 0 आ जाएगा, मीन 1 चेन लेंथ आपने कवर कर दी। नेक्स्ट 30 मीटर अगर आप कवर कर ले तो इसका चेनेज क्या होगा, 2 + 0 0 आ जाएगा, मीन 2 चेनेज आपने कवर कर दी। 30 मीटर और कवर कर ले तो इसका चेनेज क्या आएगा, 3 + 0 0 आएगा। सिमिलरली T1 का चेनेज क्या है, इसका मतलब यह है कि 24 फुल चेन है और 20 मीटर है। तो नेक्स्ट राउंड नंबर ऑफ चेनेज क्या होगा, 25 होगा। सो इन बिटवीन T1 और फर्स्ट पिग इनके दरमियान ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, कितना होगा, 10 मीटर 10 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आप लगाएंगे उसका चेनेज क्या होगा, 26। रिमेंबर जो पॉइंट्स आप लगाते हैं ना ये फिक्स इंटरवल पे लगाते हैं, और 30 स्टैंडर्ड है लेकिन आप 20 और 10 भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट पिक जो है वो 26 चेनेज पे होगा, नेक्स्ट 27 पे होगा, 28 पे होगा, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। लास्ट चेनेज जो आएगा ना, लास्ट पिक जो आएगा उसका चेनेज क्या होगा, 36, ठीक है। और T2 का चेनेज क्या है, 36 + 20 है। तो लास्ट इंटरवल जो है या लास्ट कॉर्ड जो है उसका डिस्टेंस कितना होगा जी, 20 मीटर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? सर समझ नहीं है, स्टार्ट T1 से समझ नहीं है। देखिए again before going into set out the curve, or we can say that ranging of the curve, first you will have to do some prior calculations. You will have to fix the position of T1 and T2. You will have to find out the change of T1 and T2, and you will have to define the number of interval which will be fixed along the curve, ठीक है। So देखिए quickly again, you will have the first line of communication, दूसरा line of communication है आपके पास। ये लाइन आपने जहां से स्टार्ट किया हुआ है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, द चेनेज विल बी 0 + 0 0। जब आप 30 मीटर कवर कर लें तो 1 + 0 0 हो जाएगा, 60 कवर कर लें 2 + 0 0 हो जाएगा, मीन 30 मीटर विल बी कंसिडर्ड एज अ वन चेन लेंथ। सपोज बी तक स्टार्टिंग पॉइंट से 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर है, तो इसका चेनेज क्या हो जाएगा, 1000 मीटर है ना, तो 1000 मीटर तक मतलब यह है कि 33
फुल चेन है और 10 मीटर, 33 फुल चेन है और 10 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट कर लें, बिकॉज आर आपने सेलेक्ट किया होगा, डिफ्लेक्शन एंगल आप ऑब्जर्व कर लें। सो यू कैन गेट द टेंजेंट लेंथ BT1 एंड BT2 बाय आर टेंजेंट पाई बाय 2। ओके, तो बी से फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे BT1 मेजर कर ले। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 200 मीटर है तो बी से इस लाइन पे 200 मीटर आ जाए और यहां पे एक पॉइंट लगाए, तो ये क्या होगा, ये T1 होगा। तो बी जो है वो 1000 है, 200 मीटर आप वापस आ गए तो ये क्या होगा, 800 हो जाएगा। 800 को अगर आप कन्वर्ट कर ले तो आपके पास आ जाएगा 24 फुल चेन और 20 मीटर, मीन 800 है ना। तो 800 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ऐसा नंबर इससे निकालें जो 30 पे डिविजिबल हो। तो 780 आ रहे और 20, तो 780 अगर 30 पे आप डिवाइड कर ले तो आपके पास 26 आ जाएगा। मतलब ये कि 26 फुल चेन है और उसके बाद 20 मीटर है। 20 मीटर तो आप एक चेन कंसिडर नहीं कर सकते ना। अच्छा, अब बी जो है, बी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में 200 मीटर जस्ट मेजर कर ले फॉर द पोजीशनिंग ऑफ T2, नॉट फॉर चेंजिंग, जस्ट फॉर पोजीशन, बिकॉज ये दो लेंथ सेम होंगे। तो बी से 200 मीटर बैकवर्ड आ जाए वो T1 होगा और बी से 200 मीटर फॉरवर्ड जाए ये T2 होगा। ठीक है, अब T2 का चेनेज क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ आप करो। तो लेंथ आप करो, आप कैलकुलेट कर ले, लेंथ आप करो क्या है, पाई आर पाई डिवाइड बाय 180। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ आप करो आ जाएगा। सपोज 300 मीटर आ रहा है, ठीक है, तो T1 के साथ 308 कर ले, इसका 800 था ना, 308 कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। 1100 को चेनेज में कन्वर्ट कर ले तो ये आपके पास बन जाएगा 36 प्लस 20। यहां तक क्लियर है? यस सर। जी ठीक है, चेनेजेस आ गए, 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप क्या है, नाउ यहां पे जो करो होगा इन बिटवीन T1 एंड T2 वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पिग्स, या उनकी दरमियान हमने नंबर ऑफ कॉर्ड्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ कॉर्ड्स फाइंड करने, नंबर ऑफ इंटरवल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ यूनिट कार्ड उसको कहते हैं, पिग इंटरवल्स उसको कहते हैं। उसको हम 10 मीटर पे भी ले सकते हैं, 20 मीटर पे भी ले सकते हैं, 30 मीटर पे भी ले सकते हैं, बेस्ड ऑन द शॉर्टनेस एंड फ्लैटनेस और साइज ऑफ द करो। So suppose we are taking that the pig interval will be at 30 meter distance. Now remember, जो फर्स्ट पिग आप लगाएंगे ना वो राउंड चेनेज पे होना चाहिए, राउंड चेनेज पे। तो T1 का चेनेज क्या है, 2620 है, तो इसके बाद राउंड चेनेज क्या होगा, 27 होगा ना। मतलब यह है कि 26 फुल चेन प्लस 20 मीटर, ये T1 का चेनेज है। तो T1 से अगर हम 10 मीटर चले जाए, 10 मीटर, तो इस पॉइंट का चेनेज क्या हो जाएगा, 27। और ये जो फर्स्ट इंटरवल है या फर्स्ट कॉर्ड जो है या फर्स्ट पिग इंटरवल, ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। सर ये 27 प्लस 20 क्यों नहीं है? यार हम 30 मीटर नहीं जा रहे, ये 26 चेन और 20 मीटर है ना। तो नेक्स्ट राउंड चेन के लिए आपने कितना जाना होगा, 20 के साथ अगर आप 10 मीटर चले जाए ना, 20 के साथ 10 चले जाए तो ये 20 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसको हम 27 फिर लिखते हैं, 27 प्लस 00 लिखते हैं। मीन फर्स्ट कार्ड जो है या फर्स्ट पिग जो है इसको आपने राउंड चेन नंबर पे लगाना होगा। तो 26 के बाद नेक्स्ट राउंड नंबर क्या है, 27 है ना। तो इस पॉइंट से अगर आप 10 मीटर चले जाए तो ये जो फर्स्ट पिग आप लगाएंगे उसका चेनेज क्या हो जाएगा, 27 प्लस 00 हो जाएगा।
क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप लगाएंगे वो इस पॉइंट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे लगाएं, तो उसका चेंज क्या होगा 28 प्लस 00 होगा। नेक्स्ट पॉइंट 30 पे लगाएं, उसका चेंज क्या होगा 29 प्लस 00 होगा। 30 प्लस 00 31 प्लस 00 32 33 34 35 एंड 36। लास्ट पिक कहां पे आ गया 36 प्लस 00। अब देखिए 27 से 36 तक इनके दरमियान आप जो पिग लगाएंगे उनका पिग इंटरवल क्या होगा 30 मीटर होगा। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने फुल कार्ड्स लगा दिए, 9 फुल हो गए ना। 9 पिग्स जो हमने लगाए उनके दरमियान इंटरवल कितना है 30 मीटर है। अब देखें लास्ट पिग उसका चेंज क्या है 36, T2 का चेंज क्या है 36 20 है ना। तो लास्ट पिग या लास्ट पिग इंटरवल या लास्ट कार्ड जो है उसका लेंथ क्या होगा जी 20 मीटर होगा ना, बिकॉज लास्ट पिग जो है उसका चेंज 36 है और T2 पॉइंट जो है वो 36 प्लस 20 है। सो ये डिस्टेंस 20 मीटर होगा। अब देखें इस करो में हमारे पास दो सब कार्ड हो गए, दो सब कार्ड्स है फर्स्ट और लास्ट, और बीच में 9 फुल कार्ड्स है। तो इसको नंबर ऑफ पिग इंटरवल्स कहते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स कहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट कार्ड्स कहते हैं। तो किसी भी करो में आपके पास मैक्सिममली 2 सब कार्ड्स होंगे और बाकी फुल कार्ड्स होंगे। तो अब इस करो में हमारे पास 2 सब कार्ड्स है ना। फर्स्ट कार्ड जो है वो सब कार्ड है, उसका लेंथ 10 मीटर है। लास्ट जो है वो सब कार्ड है, उसका लेंथ 20 मीटर है। बीच में हमारे पास 9 फुल कार्ड्स है, उनका डिस्टेंस कितना है 30 मीटर्स है। इज इट क्लियर नाउ जी? यस सर। अच्छा, एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा आगे। इस तरह भी हो सर सकते है ना कि सपोज अगर T1 जो है, सपोज T1 का चेंज आपके पास एग्जैक्टली आ जाए फॉर एग्जांपल 28 प्लस 00। T1 का चेंज क्या आ जाए 28 प्लस 00, तो ये राउंड नंबर है। तो फर्स्ट पिग फिर आप किस पे लगाएंगे 29 पे, तो ये फुल कार्ड हो गए ना। अब इसको आप सब कार्ड नहीं कह सकते, ठीक है। तो या इसमें सब कार्ड्स होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो मैक्सिममली 2 सब कार्ड्स होंगे, एक स्टार्ट में और एक आखिर में, और बीच में फुल कार्ड्स होंगे। सो फर्स्ट you have to fix the position of T1 and T2, then you have to find out the change of T1 and T2, then you have to find out the number of full card and sub card। ये 3 स्टेप्स है जी। कोई क्वेश्चन कर रहा था सर ये राउंड अप नंबर का जो केस है सर, सिर्फ ये इस केस के लिए है जब हमारे पास कंटूर इंटरवल 1 मीटर हो, ये इंटरवल सिर्फ? हमारा कंटूर इंटरवल कहाँ से आ गया इसमें? नहीं सर, इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। पेग इंटरवल जो है ये 10 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, 30 मीटर भी हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पेग जो है ये आपने राउंड चेनेज पे लगाना है। यार फर्स्ट आप लोग जो चेनेज को अंडरस्टैंड कर लें। आप लोगों ने सर्वे 1 में नहीं पढ़ा हुआ कि चेनेज किसे कहते हैं। नंबर ऑफ, सपोज अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, लार्ज डिस्टेंस है, तो एक चेन डिस्टेंस जब आप मेजर करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं 100। ये एक चेनेज हो गया ना, एक बार आपने चेन को एक्सटेंड करके ये डिस्टेंस मेजर कर, ये 1 चेन लेंथ हो गया, इसको 1 चेन लेंथ कहते। दोबारा आपने एक्सटेंड कर दी, दूसरा चेन हो गया, तीसरी बार आपने एक्सटेंड की, तीसरा चेन। अब जो नेक्स्ट ये जो ये पूरा चेन नहीं आ रहा, सपोज ये 10 मीटर है, तो इस डिस्टेंस को आप किस तरह लिखेंगे 3 प्लस 10। इसका मतलब क्या है कि 3 फुल चेन है और 10 मीटर है, और एक्चुअल में ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा
100 मीटर होगा। तो अब देखिए T1 का चेनेज 26 फुल चेन प्लस 20 मीटर है। तो फर्स्ट पिक जो आप लगाएंगे वो आपने राउंड नंबर पे लगाना है। तो 26 20 के बाद राउंड नंबर क्या है, 27 है। तो 26 20 से 27 तक यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। बिकॉज 26 20 के साथ अगर आप 10 ऐड कर लेना तो ये क्या हो जाएगा, 26 30 हो जाएगा। तो 30 का मतलब क्या है, वन चेन है ना। तो फिर यहाँ पे हम 26 30 नहीं लिखते, इसको हम 27 लिखते हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, so that we have discussed that fix the position of T1 and T2. After locating the position of T1 and T2, determine their changes. As we have discussed, the changes को आप determine करें. So the change of T1 will be equal to change of intersection point minus the tangent length, and the change of T2 will be equal to the change of T1 plus length of curve. So you will get the changes of T1 and T2. Then find out the pegs. Okay, the number of pegs, yeah, the number of the unit chords. So maximally there will be 2 sub chords and some number of we can say that full chords. Okay. अच्छा, and actually देखिए, suppose this is the first line of communication, this is another line of communication, and for example you have fixed the position of the tangent points, that this is T1 and this is T2. Now you will find out the number of full chord and sub chord as we have determined the previous slides कि हमारे पास 2 sub chords हैं और 9 full chords है। तो अब ये जो डिस्टेंस हम मेजर करते that are actually we are measuring straight, इसको हम सीधा मेजर करते, बट एक्चुअली हमने यहाँ पे कर्व बनाना है। समझ आ रहे, मीन 2 पिग्स के दरमियान जो डिस्टेंस हम मेजर करते ना, डिस्टेंस हम स्ट्रेट मेजर करते हैं, बट एक्चुअली वी विल हैव टू डिजाइन हियर अ कर्व। सो रिमेंबर this difference is negligible, so that's why we are measuring the distances in straight line. और ये तभी negligible होंगे जब ये chord length जो है या ये pig interval जो है, if it is less than 1/20 time of the radius, अगर एक कर्व की रेडियस के 20 टाइम से ये इंटरवल कम हो, so then we are considering that the distance on the curve will be equal to the distance on the chord. ठीक है, बिकॉज एक्चुअली हम मेजरमेंट्स करते तो मेजरमेंट में हम टेप को या चेन को तो कर्व नहीं रखते ना, उसको तो हम स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट माइंड में रखिए। Now the distances should be the distance from the T1 to T2 should be divided into equal interval from the beginning of the curve to the end of the curve. उसमें हम ब्रेक्स नहीं करते ना कि सपोज ये कर्व है तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे पास एक सब कार्ड्स आ जाता है, फिर फुल कार्ड्स आ जाते हैं, फिर आखिर में हमारे पास सब कार्ड होता है। देयर विल बी नो ब्रेक या देयर शुड बी रेगुलरिटी इन बिटवीन द points passing from one to another. Yeah, again there should be no break passing from the tangent to the curve or from curve to the tangent. यहाँ पे कोई स्पेस या ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअसली आपने पॉइंट्स लगाने होंगे। ठीक है, एंड फर्स्ट देयर विल बी अ सब इंटरवल, देन वी विल हैव द फुल इंटरवल्स, एंड एट द एंड देयर मे बी सब इंटरवल। सो 2 सब इंटरवल्स हो सकते हैं, सब कॉर्ड्स हो सकते हैं, और बीच में फुल कार्ड्स होंगे। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ द फर्स्ट सब कार्ड, ये पॉसिबल है ना कि ये फुल इंटरवल से कम हो, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट शुड बी फिक्स्ड एट राउंड चेन नंबर्स। सो जाहिर बात है अगर T1 का जो चेन है फॉर एग्जांपल जो 2620 है, तो जो फर्स्ट पेग आप लगाएंगे वो T1 से 10 मीटर डिस्टेंस पे होगा कि इसका चेन 27 आ जाए। So 10 meter is less than the
फुल कॉर्ड का लेंथ 30 मीटर का होता है। ठीक है, अब देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इससे फर्दरली क्लियर हो जाएंगे ये कैलकुलेशन जो है। सर जी सर हमारे पास इंटरवल आ गया, हम उस इंटरवल पे सर जो है ना वो पिक को इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन सर हमारे पास वो कर्व का डायरेक्शन नोन नहीं है कि मतलब इस डायरेक्शन में हम इस पिक को लगाएंगे इतने डिस्टेंस पर। देखिए वो तो रेंजिंग है ना, वो सेटिंग है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसकी डिफरेंट मेथड्स है। लेकिन पहले आप लोग जो है ये देखें कि किस तरह आप फाइंड करेंगे कि कितने पेग्स आपने लगाने हैं, कितने सब कार्ड्स है, उनका डिस्टेंस क्या होगा, पुल कार्ड्स कितने होंगे, टेंजेंट का चेनेज क्या होगा, टेंजेंट लेंथ क्या होगा, ये चीजें तो पहले डिफाइन कर लेना, वो करेंगे आप आगे स्लाइड्स में आ रहे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वो तो आपने डिफाइन कर दिया ना कि T1 से फर्स्ट पेग 10 मीटर डिस्टेंस पे होगा, फिर 30 मीटर पे हमारे पास 9 पिग्स होंगे, फिर लास्ट पिग जो है वो 20 मीटर डिस्टेंस पे होगा T2 से। ये तो हमने डिफाइन कर दिया। अब ये पिग हम कैसे लगाएंगे कि एग्जैक्टली करो कि ऊपर आ जाए, उसको रेंजिंग कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। क्वेश्चन ये है ना आपका? यस सर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। सी a simple circular curve is to have a radius of, again radius given है। see for the designing or setting out of any circular curve you will have these three information: the change of the point of intersection, the intersection angle or the deflection angle, and the radius of the curve. So the change and the angle of intersection will be practically measured, ग्राउंड में आपने उसको मेजर करना होगा, और रेडियस जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन स्पेस अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द कर्व व्हिच यू आर गोइंग टू डिजाइन। ठीक है, नाउ दीस थ्री इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट द टेंजेंट लेंथ, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द changes of the start of the curve and the end of the curve, then you will have to find out the length of the chord कि इन दो के दरमियान longest distance कितना है। also you can find out the length of the curve, you can find out the degree of the curve, and the most important you will have to find out the number of full chord and sub chords। ठीक है, तो अब देखें प्रैक्टिकली आपके पास एक ये लाइन गिवन है, फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एंड सेकंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज गिवन, द चेनेज ऑफ दिस पॉइंट इज गिवन, इंटरसेक्शन पॉइंट का चेनेज गिवन है। ठीक है, एंड इंटरसेक्शन एंगल इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन। सो फर्स्ट just find out the deflection angle because it will be used in different calculation। so deflection angle is equal to 180 minus the angle of intersection। so deflection angle जो है वो आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है, now first step क्या है? tangent length कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो tangent length किस तरह कैलकुलेट करेंगे? again we have formula that r tangent phi by 2। so r is given which is 573 and phi is given which is 60। so इसमें just आप put कर लें, so you will get the tangent length is equal to 330.85 मीटर। ठीक है, so इस पॉइंट से 330.85 आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएं और यहां पे एक पॉइंट लगाएं तो ये आपका T1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 330.85 आप आ जाए, यहाँ पे पॉइंट लगाएं, ये क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में 330.85 डिस्टेंस पे चले जाएं और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं तो ये आपका सेकंड टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया। जस्ट टू फिक्स द पोजीशन ऑफ T1 एंड T2, तो इसको किस तरह फिक्स करते हैं?
टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट कर लें और इंटरसेक्शन पॉइंट से दोनों लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस पे वही डिस्टेंस मेजर करके 2 पॉइंट्स लगाएं, एक T1 हो जाएगा, एक T2 हो जाएगा। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है? T1 और T2 का चेनेजेस फाइंड कर लें। ठीक है, तो B का चेनेज जो है 1060 है, T1 का चेनेज क्या हो जाएगा? 1060 माइनस 330.85, तो आपके पास आ जाएगा 729.15। तो इसको आप कन्वर्ट कर लें नंबर ऑफ फुल चेन और फ्रैक्शन में, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 720 प्लस 9.15। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि 24 फुल चेन, अगर 720 को आप 30 पे डिवाइड कर लें, 24 फुल चेन प्लस 9.15, ये T1 का चेनेज आ गया। ठीक है, 24 प्लस 9.15, ये क्लियर हो गया जी? यस सर। यस सर। अच्छा, T2 का चेनेज क्या होगा? पहले आपने लेंथ ऑफ करो फाइंड करना है। सो लेंथ ऑफ करो इज इक्वल टू पाई आर पाई डिवाइड बाई 180। सो आर भी गिवन है, पाई भी गिवन है जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। फ्रॉम दिस यू विल गेट 600 मीटर। मतलब ये है कि लेंथ ऑफ करो जो है दैट इज 600 मीटर। तो अब T2 का चेनेज क्या होगा? चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ करो। तो T1 का चेनेज क्या है? 729.15 है, इसके साथ 600 प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1329.15। ये T2 का चेनेज हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर ले उसमें नंबर ऑफ फुल चेन में और फ्रैक्शन में। सो देखें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 1320 प्लस 9.15 मीन नियरेस्ट डिविजिबल बाय 30 नंबर इससे सेपरेट कर ले। नाउ डिवाइड बाय 30, इसको कर ले अप टू 44 प्लस 9.15 आ जाएगा। सो दैट इज द चेनेज ऑफ T2। T2 जो है ये 44 फुल चेन और 9.15 मीटर डिस्टेंस पे है स्टार्टिंग पॉइंट से। T1 जो है ये 24 फुल चेन और 9.15 फ्रैक्शन डिस्टेंस पे है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया टू डिटरमाइन द चेंजेस ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्ड्स। फुल कार्ड्स कितने होंगे और सब कार्ड्स कितने होंगे। तो आप देखें T1 का चेनेज क्या है? 24 प्लस 9.15 है। तो फर्स्ट पिग कितने चेनेज पे होनी चाहिए, कोई बता सकता है? 20.85। कहां से 20.85? 25 सर। 25, 24 फुल चेन, 9.15 फ्रैक्शन T1 का है। तो 24 के बाद नेक्स्ट राउंड नंबर क्या है? 25। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा T1 से फर्स्ट पिक तक? ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये कोई बता सकता है? 20.85। एग्जैक्टली 20.85। सो दैट इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कार्ड। और ये 30 से कम है ना, तो इसको हम सब कार्ड्स कहेंगे। अब इसके बाद जो पॉइंट्स आप लगाएंगे वो 30-30 इंटरवल पे लगाएंगे। तो नेक्स्ट जो पिग होगा वो 26 पे होगा, नेक्स्ट 27 पे होगा, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 up to 44। बिकॉज T2 का चेनेज क्या है? 44 फुल चेन है और 9.15 है। तो लास्ट पिक का चेनेज क्या होगा? वो 44 होगा।
और T2 का चेनेज 44 प्लस 9.15 है, तो लास्ट कार्ड का लेंथ कितना आएगा जी? 9.15। 9.15। सो देखिए, स्टार्ट में एक सब कार्ड हो गया और आखिर में एक सब कार्ड हो गया और बीच में फुल कार्ड्स हो गए। तो 44 माइनस 25, तो इस बीच में 19 फुल कार्ड्स होंगे, ठीक है, 19 फुल कार्ड्स होंगे और 2 सब कार्ड्स होंगे। फर्स्ट सब कार्ड का लेंथ 20.85 होगा और लास्ट सब कार्ड का लेंथ 9.15 होगा। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ना, 19 फुल कार्ड्स है, तो 19 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो 570 आ जाएगा। फर्स्ट कार्ड जो है 20.85 और लास्ट कार्ड 9.15, इन दोनों को इसके साथ ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 600, एंड विच इज द लेंथ ऑफ द कर्व, मीन टोटल लेंथ आपने कवर किया। सो 19 फुल कार्ड्स और 2 सब कार्ड्स होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये था कि टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ दिस फुल कार्ड, ये जो मेन कार्ड है ना T1 और T2 के दरमियान स्ट्रेट डिस्टेंस, ये किसके बराबर होता है? 2r sin π/2। लास्ट क्लास में हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था, 2r sin π/2। इसमें अगर आप पुट कर लें so you will get the 573 meters, so that is the length of the full card. Is it clear? सर ये फुल कार्ड और सब कार्ड का बात सर हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारे पास इंटरवल 1 चेन हो। सर अगर इंटरवल 10 मीटर 20 मीटर तो तब भी इसके लिए ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे? यार इंटरवल 10 हो, 20 हो, 30 हो, जो भी हो, प्रोसीजर सेम है, ठीक है, इसके साथ आप कंफ्यूज ना हो। लॉन्ग कार्ड जो है दैट इज जस्ट द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड T2, वो तो एक और चीज है। यहाँ पे जो हम लगाते हैं ये नंबर ऑफ फुल कार्ड्स है और सब कार्ड्स है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। इंटरवल 10 हो, 20 हो, 30 हो, जो भी हो, T1 का चेनेज होगा आपके पास, तो फर्स्ट पिग आपने राउंड नंबर पे लगाना है, बाकी आपने फिर जो है स्टैंडर्ड इंटरवल पे लगाने हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार 30 हो, 20 भी हो सकता है, प्रोसीजर सेम है, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ कर्व भी फाइंड करना होता है ना, सो एज वी नो दैट r इज इक्वल टू 1719 बाई d। अगर गिवन डेटा जो है मीटर में है ना तो आप ये इक्वेशन यूज कर ले, अगर गिवन डेटा फीट में है तो आप वो 5729 वाला फॉर्मूला यूज कर लो। सो डिग्री ऑफ कर्व इज 3 डिग्री। अब इस 3 डिग्री का मतलब यह है कि द स्टैंडर्ड कार्ड विच यू हैव टेकन, देखिए 25 और 26 इसके दरमियान ये स्टैंडर्ड कार्ड है ना, इसका लेंथ कितना है? 30 मीटर है। तो ये जो एक कार्ड सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है ये कितना होगा? ये 3 डिग्री होगा, इसको डिग्री ऑफ कर्व कहते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड कार्ड सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है इसको डिग्री ऑफ कर्व कहते हैं, ठीक है। सो डिग्री ऑफ कर्व इस तरह कैलकुलेट कर लो। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल है, इससे फर्दर भी और क्लियर हो जाएगा। टू टेंजेंट intersect at change of 6 plus 26 57. It is proposed to insert a circular curve of radius 1000 feet. The deflection angle is this one. अच्छा, एक पॉइंट और माइंड में रखें, ये जो हम चेनेज लेते हैं ना, अगर आपके पास जो यूनिट है वो एपीएस सिस्टम में फीट में है, तो फिर जो राउंड नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको? मल्टीपल ऑफ 100 फीट रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब मीन इस ये टोटल लेंथ कितना है? 626.57 फीट है। मीन एपीएस सिस्टम में वन चेन लेंथ कितना होता है? कितना होता है?
100 फीट होता है सर। 100 फीट होता है ना, तो फिर चेन एज में जो राउंड नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 100 होगा, ठीक है। और अगर सिस्टम एसआई सिस्टम है, मीटर में है कैलकुलेशंस, तो फिर जो चेन एज है ना, सपोज अगर इस तरह है, तो फिर उसमें राउंड नंबर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 30 होगा, ठीक है। और अगर मेंशन है कि चेन एज इज 20 मीटर और 10 मीटर, तो फिर वो राउंड नंबर उसका मल्टीपल होगा। अगर देखिए दो केसेस है, अगर पिग इंटरवल मेंशन नहीं है और यूनिट फीट में है, तो फिर ये राउंड नंबर जो है ये मल्टीपल ऑफ 100 होगा। और अगर मेंशन नहीं है और यहाँ पे यूनिट मीटर है, तो फिर ये जो नंबर है दैट मस्ट बी कंसिडर्ड मल्टीपल ऑफ 30। और अगर मेंशन है कि पिग इंटरवल इज 20 मीटर या पिग इंटरवल इज 10 मीटर, तो फिर यहाँ पे जो राउंड नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ दैट वैल्यू होगा, ठीक है। इसको माइंड में रखें। अच्छा, नाउ दिस सिस्टम इज जो है यहाँ पे फीट गिवन है। सो जो दो टेंजेंट्स मीट हो रहे, दैट इज T1, फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। इनका जो चेनेज पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका चेनेज क्या है, 626.57 फीट है, मीन 626.57 फीट है। तो 600 को आप चेनेज ले सकते हैं ना, तो फुल चेन है और 26.57 फीट है, ठीक है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी गिवन है, दैट इज 16 डिग्री एंड 38 मिनट, एंड रेडियस भी गिवन है which is 1000 feet. Now required क्या है, चेनेज ऑफ दी टेंजेंट पॉइंट्स हमें फाइंड करने, चेनेजेस फाइंड करने। तो चेनेजेस किस तरह फाइंड करेंगे, फर्स्ट फाइंड कर ले टेंजेंट लेंथ को। सो टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू आर टेंजेंट पाई बाई 2। नाउ आर इज गिवन, पाई इज गिवन, सो यू कैन कैलकुलेट इट 146.18। तो इस पॉइंट से 146.18 ले ले, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा वो T1 हो जाएगा। इसका चेनेज क्या होगा, 626.57 माइनस 146.18, so you will get 480.39। so 480 है, तो इसको हम 4 प्लस 80.39 लिख सकते हैं, तो ये इसका चेनेज आ जाएगा। T2 का चेनेज क्या होगा, उसके लिए आपने लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू पाई आर पाई डिवाइड बाई 180। सो लेंथ ऑफ कर्व अगर आप कैलकुलेट कर ले इससे, सो यू विल गेट 290.31। सो चेनेज ऑफ T1 मीन 480.39 प्लस 290.31, तो इससे आ रहा है 770। इस पॉइंट का 770.7 आ रहा है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ना, 7 प्लस 70.7। रिमेंबर ये जो राउंड नंबर है दैट इज मल्टीपल ऑफ 100, तो बीच में जो फ्रैक्शन आएगा उसको आपने वैसे लिखना है फिर, ठीक है। तो T1 और T2 का चेनेज आ गया आपके पास। नाउ लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है कि T1 और T2 को अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना स्ट्रेट, तो इसको लॉन्ग कॉर्ड कहते हैं। इसका लेंथ क्या है, 2r sin पाई बाई 2। प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिराइव किया था। सो r भी गिवन है, पाई भी गिवन है, सो यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, वो जो है 289.29 हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो कर्व है ना, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट से कर्व के मिड पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, मिड ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। एंड मिड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू r into 1 minus cos
पाई बाई 2। ठीक है, तो इसमें आप सारे वैल्यू पुट कर लें, सो यू विल गेट 10.52। ये मिड ऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या है, ये करो के मिड पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ये है, एंड दैट इज इक्वल टू r इनटू सेकेंड पाई बाई 2 माइनस 1। ये इक्वेशन है उसका, r इनटू सेकेंड पाई बाई 2 माइनस 1। तो इसमें आप r और पाई की वैल्यू पुट कर लें तो 10.63 आ जाएगा। क्लियर हो गया जी? जी सर क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए इसमें अगर आप फाइंड करते हैं ना नंबर ऑफ फुल कार्ड एंड सब कार्ड, तो T1 जो है उसका चेनेज क्या है, 4 प्लस 80.39 है। तो फर्स्ट पेग जो आप लगाएंगे वो राउंड चेन पे होना चाहिए, तो उसका चेनेज क्या होना चाहिए, 5 प्लस 00। तो इसका लेंथ कितना आएगा, बता सकते हैं? 19.61 फीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेग जो होगा वो 6 चेनेज पे होगा, नेक्स्ट पेग 7 चेनेज पे होगा। ठीक है, लास्ट पेग जो है वो 7 पे होगा ना। अब T2 का चेनेज क्या है, 7 प्लस 70.7 है, तो लास्ट इंटरवल कितना आएगा, 70.7 आएगा। तो इसमें क्या हो गए, 2 सब कार्ड्स हो गए। फर्स्ट सब कार्ड का जो लेंथ है वो 19.6 फीट है, लास्ट जो सब कार्ड है उसका लेंथ 70.7 फीट है, और बीच में 2 फुल कार्ड्स है, उनका लेंथ 100 फीट होगा। आई होप नाउ इट विल बी क्लियर। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। 2 tangents intersect at this much change, deflection angle is given, degree of curve is given. So now first you have to find out the radius. So all the units are given in we can say that in feet. ठीक है, यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फ्रैक्शन 87 है तो ये फीट वाली यूनिट्स है। So just use this equation, r is equal to 5729 divided by d. So convert the degree into radius, तो ये रेडियस आ जाएगा। नाउ रिक्वायरमेंट क्या है, चेनेज हमने फाइंड करने ना, T1 का और T2 का चेनेज फाइंड करना। सो जस्ट फाइंड आउट द टेंजेंट लेंथ, r is equal to tangent 5 by 2 which is 94.98 feet. Now the tangent the channage of this point is given, so channage of this point minus 94.98, so you will get the channage of T1 which is 13 chain plus 92. Now इसके साथ लेंथ आप करो 8 कर ले which is 189 feet, so you will get the chainage of T2. ठीक है, so this was a little bit basic calculations or the basic points which need to be calculated before going into the ranging or setting out of any curve. That you must have the change of the intersection point, you must have the deflection angle, you will have the radius, then you can calculate the tangent lengths through which you can define the position of T1 and T2. Also you can find out the changes of T1 and T2, and you can calculate the length of the curve, length of the long chord, mid ordinate and external ordinate, and also you can define the number of full chords and sub chords and their lengths. तो ये बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं जो आपके पास होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर रेंजिंग और सेटिंग आउट ऑफ द कर्व ऑन द ग्राउंड। क्लियर?